عدلیہ کے خلاف مہم کی تحقیقات کے لیے حکومت نے JIT بنا دی. ایڈیشنل DG سائبر کرائم FIA کنوینر ہوں گے. IB ISI DG ICT پولیس اور نمائندہ PTA ممبر ہوں گے. سپریم کورٹ فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر اعلیٰ عدلیہ کے خلاف مہم کی تحقیقات کی جائیں گی. JIT اعلیٰ عدلیہ کے خلاف مہم کے محرکات کا تعین کرے گی. عدلیہ مخالف مہم اور ججز کی ساکھ متاثر کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. ملزمان کے خلاف چالان متعلقہ عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے. JIT مستقبل میں ایسے واقعات کے تدارک کے لیے اقدامات تجویز کرے گی. 15 دنوں میں ابتدائی رپورٹ وزارت داخلہ کو بھیجی جائے گی. گزارش ہے اپنی قوم سے، اپنے وکلاء سے فیصلے پہ تو اعتراض کریں، لیکن ایسے کنٹینشیس ریمارکس نہ دیں جس سے ججز کی تضییق ہو. بطور ادارہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے جب بھی کسی کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ججز پر تنقید برداشت نہیں کریں گے. فیصلے پر تنقید کے بجائے ججز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. صدر سپریم کورٹ بار کی پریس کانفرنس. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے کہا PTI نے ہمیشہ اداروں کو کمزور کیا. PTI نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے جس پر کارروائی ہوئی. سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی خلا ہے تو دیکھا جا سکتا ہے. حسن رضا پاشا نے کہا اخلاقی طور پر PTI کو بلے کا نشان ملنا چاہیے. قانونی طور پر انٹرا پارٹی انتخابات کرائے بغیر ریلیف ملنا ممکن نہیں. ترجمان PTI نے وکلاء کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا دستور پامال اور بدترین سیاسی انتقام کا وسیلہ بنایا جاتا رہا، لیکن ان وکلاء نمائندوں میں سے کسی کو رد عمل کی توفیق نہ ہوئی. ان بار کونسلوں کی پریس کانفرنس کے مندرجات مسترد کرتے ہیں. انشاءاللہ 8 فروری کو قلم دعات جیتے گی. میں جیل جا رہا ہوں اور مجھے جیل جانے کا حکم ہوا ہے. جان جاتی ہے جائے اللہ کی راہ میں، قلم دعات جیتے گی. پاکستان زندہ باد. شیخ رشید 9 مئی واقعات میں پھر گرفتار. ضمانت خارج ہونے پر احاطہ عدالت سے حراست میں لیا گیا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کے خلاف نیو ٹاؤن تھانے میں جلاؤ گھیراؤ اور حساس عمارت پر حملے کی منصوبہ بندی کا مقدمہ درج ہے. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے شیخ رشید کی GHU حملے سمیت 12 مقدمات میں ضمانت منظور بھی کی. ویڈیو پیغام میں کہا حکم ہوا ہے جیل جا رہا ہوں، مجھے انصاف کی امید ہے. اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں کسی بھی جگہ موجود نہیں تھا. جیل سے چٹان کی طرح الیکشن لڑیں گے. ہماری لاش ہی جیل سے آ سکتی ہے، کاغذات نامزدگی واپس نہیں آ سکتے. 8 فروری کو قلم دعوات کی جیت ہوگی. جب سے چلا کاٹا ہے میری بول چال میں بھی فرق آ گیا ہے. پولیس نے شیخ رشید کا سامان جیل لے جانے نہ دیا. کمبل اور 2 سوٹ کیس واپس لوٹا دیے. شیخ رشید کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں، حکومت میں اتحادی تھے. PTI رہنما بیرسٹر گوہر کا شیخ رشید کی گرفتاری پر رد عمل. کہا PTI نظریاتی سے اتحاد ضرور ہوا تھا، اس کے بعد جو ہوا سب نے دیکھا. 8 فروری کو فتح آپ کی ہوگی، آپ متحد رہیں، اپنے ووٹرز اور امیدوار کی پہچان کریں. کل رات 9 بجے تک تمام لسٹیں فائنل کر لیں گے. پارٹی رہنما اور کارکنان آپس کے اختلافات کو ایشو نہ بنائیں. شیر افضل مروت ہمارا ہے اور ہمارے ساتھ رہے گا. لکی مروت سے ہمارا امیدوار ہے اور وہ الیکشن جیتے گا. شیر افضل مروت پارٹی رہنماؤں کے بیانات سے ناراض. سندھ میں انتخابی مہم ختم کر دی. کہا جب تک بانی PTI خود طے نہیں کر لیتے میں کسی ریلی یا جلسے کی قیادت نہیں کروں گا. کابل جا کر چائے پیتے ہوئے سوچا ہی نہیں کہ ملک کو فیصلے کا کیا بوجھ اٹھانا پڑے گا. قربانیوں پر سمجھوتا کر کے دہشت گردوں سے بات چیت کی گئی. ہم نے دہشت گردوں کو دعوت دی، آئیں فاٹا میں پھر سے آباد ہوں، آئیں کراچی میں بہت جگہ ہے یہاں اپنا گھر بنائیں. بلاول بھٹو کا نوڈیرو میں تقریب سے خطاب. کہا اس بار کسی حادثے سے پہلے ہی ملک سنبھالیں گے. جو آج ان کے مخالفین کے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا. نفرت اور تقسیم کی سیاست بڑھتی جائے گی تو عوام، وفاق اور نظام کو نقصان ہوگا. بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور کا اعلان بھی کر دیا. وزیر اعظم بن کر مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ کرنے کا وعدہ کیا. کہا غریبوں کو گھر،
300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, तालीम के लिए वज़ाइफ दिए जाएंगे। JUI को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम पर धमकियां, पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग करने दी तो अच्छा नहीं होगा। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का AIY न्यूज पर इंटरव्यू में इंकशाफ, कहा KP में शाम के बाद किसी और की हुकूमत होती है, गैर रियासती अनासिर का राज होता है। बोले नवाज शरीफ ने जो गलतियां माजी में की वो अब ना दोहराए। नवाज शरीफ कब तक बर्दाश्त करेंगे कि नाम और दस्तखत उनके, हुक्म किसी और का हो। कहा बैसाखियों से हुकूमत बनाएंगे तो लूली लंगड़ी से भी बदतर होगी। लोटों के जरिए इक्तदार में आना चाहते हैं तो फिर ये सियासत और मेचोरिटी नहीं, ये असूली नहीं वसूली की सियासत है। इस किस्म की हुकूमत का मुस्तकबिल खौफनाक देख रहा हूं। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत और यकीनी बनाएंगे, मकामी सनतों के फरोग और खुद इन्हसारी से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। खुद इन्हसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए इकदाम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का POF वाह में अफसरान और अहलकारों से खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की पैदावारी सलाहियतों और अफवाज की दिफाई जरूरियात पूरी करने में इदारे के ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। POF दिफाई मसनूआत की बरामदात से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने POF मसनूआत के तजुर्बे के रेंजेस का भी दौरा किया। मुख्तलिफ हथियारों के टेस्ट और ट्रायल्स के तहत मकामी तौर पर डिजाइन और तैयार करदा नए हथियार और बारूद का मुशाहिदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने बुनियादी दिफाई सनत के तौर पर POF के किरदार को सराहा। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत, आइंदा समाअत पर अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI का अदालत के रूबरू सहते जुर्म से इनकार। बानी PTI इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, 2 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI के वकील ने मौकफ अपनाया। रिटर्निंग अफसर का काम ये नहीं कि वो इखलाकी पस्ती पर अपना फैसला दे। तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो चुकी है, केस ज़ेरे समाअत है। ज़ेरे इल्तिवा केस के फैसले तक मेरा मुवक्किल मुजरिम नहीं बनता। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये कहना कि सजा मुअत्तल हो गई है तो बरियत कर दी जाए गलत है। किसी मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील दायर हो जाए तो क्या रहा, कर दिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी, आसिफ खान समेत दीगर की इंतखाबी निशानात के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने शहरियार आफरीदी को बोतल, आसिफ खान को हथगाड़ी, आफ्ताब आलम को बैंगन और शफीउल्लाह को गो का निशान अलॉट किया था। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशानात की तब्दीली से इज्तनाब की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। हो सकता है इस मरहले पर इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन न हो। इंतखाबी निशान में तब्दीली लाजमी हो तो कमीशन से पेश की इजाजत ली जाए। जो कुछ चल रहा है अच्छा नहीं है। कुछ मेहमान अमेरिका से आए हुए थे, हमारे पास उनके सवालों का जवाब नहीं था, हमने बस सर झुका लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बास के रिमार्क्स। आरओज और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फैसलों के खिलाफ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, मादियो नजर में बेबुनियाद चीजों को जवाब बनाकर कागजात मुस्तरद किए। एक दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा, ऐसा ना हो कोई आपके घर पर आ जाए, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। लाहौर ऐसे हो गया जैसे लावारिस होता है। लाहौर की, पंजाब की, पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आप मुझे वोट दोगे तो दिन रात आपके मसाइल हल करने में मैं जुट जाऊं। लाहौर से वादा है शेर को जितवाओ, दिन रात खिदमत करेंगे। मरियम नवाज का इंतखाबी रैली से खिताब, कहा लाहौर को लावारिस बनाने वालों को 8 फरवरी को उठाकर बाहर फेंक देना।
5 साल बाद लाहौर में शेर वापस आएगा और तरक्की का पहिया जहां रुका था वहीं से चलाएंगे। जितनी मोहरें शेर पर लगेंगी उतनी ही तेजी से तरक्की होगी। मरियम नवाज की रैली का योहनाबाद में भी इस्तकबाल किया गया। भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों को तकलीफ समझती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह दुगनी हो, आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले, तो फिर बनाओ के साथ में। आसिफा भुट्टो की कराची में इंतखाबी मुहिम, रैली से खिताब में कहा 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएं। आप चाहते हैं कि बिजली मुफ्त मिले तो पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। आप गुर्बत मिटाना चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो का साथ दें। आसिफा भुट्टो का जगह जगह शानदार इस्तकबाल, भुट्टो के नारे लगवाए। आसिफ अली जरदारी से साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की मुलाकात, बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पंजाब में सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी ने NA 127 पर बिलावल भुट्टो की हिमायत पर चौधरी सरवर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने पर भी जोर। चौधरी सरवर NA 127 पर बिलावल भुट्टो की मुहिम चलाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और PTI वकील लतीफ खोसा फिर आमने सामने। लतीफ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा को मुखातिब करके कहा, खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, एक तरफ अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। गजा पर इसराइली बमबारी न रुक सकी। सेहूनी फोर्सेज ने 24 घंटे में मजीद 158 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। रफा में घर पर बमबारी से एक ही खानदान के 12 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमले में जख्मी कराटे चैंपियन दम तोड़ गई। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,285 हो गई। 61,000 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा में चौथे रोज भी ब्लैकआउट। इसराइली हुकाम ने दवाएं और फ्यूल ले जाने वाले काफिलों को शिमाली गजा जाने से रोक दिया। जनूबी गजा में भारी नुकसान के बाद इसराइली फौज ने 4 जंगी डिवीजन्स में से एक को वापस बुला लिया। अगर फलस्तीन का मसला हल हो जाता है तो सऊदी इसराइल को तस्लीम कर सकता है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब, कहा कि बहरी जहाजों पर हुसियों के हमले गजा की जंग से मुंसलिक हैं, इसलिए गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के इराक में कुर्दिस्तान के कई मकामात पर मिसाइल हमले। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने कुर्दिस्तान में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। इराकी शहर अरबील में दाइश के ठिकाने पर भी मिसाइल से हमले। दाइश कमांडर समेत 4 अफराद हलाक, 6 जख्मी हुए। ईरान का कहना है हलाक शुदगान कासिम सुलेमानी की बरसी पर हमले में मुलव्विस थे। पाक फौज और रॉयल साउदी लैंड फोर्सेज की मुश्तरका जंगी मशकें। शिरकत के लिए रॉयल साउदी लैंड फोर्सेज का दस्ता लाहौर एयरबेस पहुंच गया। दोनों अफवाज मुश्तरका मशकी तरबियत ओकाड़ा गैरिसन और खैरकूटा मेवाली में करेंगे। मकसद जामे तरबती प्रोग्राम से अस्करी तरबियत, हुनर और महारत को आपस में बांटना है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की सबरा पाक फजाइया जहीर अहमद बाबर से मुलाकात। मुश्तरका फिजाई मशकों के जरिए ताउन और तरबियती शोबे को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। एयर चीफ ने कहा अमरीका से मजबूत सिफारती, इक्तसादी, दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतालिक तमाम अहम उमूर में बाहमी इत्तफाक राय पर कायम है। अमरीकी सफीर ने कहा पाक फजाइया की खुद इन्हिसारी के मैदान में नुमाया पेशरफ्त काबिल तहसीन है। डोनाल्ड ब्लूम की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की भी तारीफ। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 2 सैनिटरी वर्कर्स दम तोड़ गए। पहला सैनिटरी वर्कर सीवरेज लाइन की सफाई के लिए उतरा। कुछ देर तक वापस न आने पर साथी उसे निकालने गया, लेकिन वो भी वापस न आ सका। रेस्क्यू 1112 की टीम ने ऑपरेशन करके दोनों की लाशें निकाली।
हाई कोर्ट हम तलबा अपना कलम के ज़ाब्ते। इंटर बोर्ड अमले की नाअहली की सजा तलबा को मिली। कराची में इंटरमीडिएट के 64% तलबा को फेल कर दिया। तलबा तालिबात का वालिदैन के साथ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। बच्चों का कहना था इंटर बोर्ड ने पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। एहतजाज में शरीक वालिदैन ने कहा बद इंतजामी नाअहली के अलावा तासुब की बुनियाद पर उनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया गया। मुजाहरे में एमक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, एमक्यूएम हकीकी और दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। तर्जुमान इंटर बोर्ड कहते हैं नताइज से मुतमिन न होने वाले तलबा स्क्रूटनी फॉर्म जमा करा सकते हैं। जो फैसिलिटी यहाँ पे है, लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी ये बेहतर हॉस्पिटल इस टाइम पे ये बन गया है। बस मेरी एक ही आप लोगों से दरखास्त है कि खुदारा इसको मेंटेन रखिएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं मुल्तान चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल से भी बेहतर बन गया। चिल्ड्रन अस्पताल में जो काम हमारे दौर में हुआ वो किसी मौजे से कम नहीं। निगरान वज़ीर आला का लाहौर में गंगाराम और जनरल अस्पताल का भी दौरा। अस्पतालों में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा हर लम्हा कीमती है, 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकते। लाहौर में 30 साल खातून के हाथ 4 बेटियों की पैदाइश। जनरल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 बेटियां सेहतमंद हैं। एक बच्ची का वजन कम होने की वजह से नर्सरी में रखा गया है। कानूनी पेचीदगियां, रुकावटें और मुश्किलात। कराची में आज होने वाला पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास मुलतवी। जराये का कहना है पीसीबी को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे। इजलास के एजेंडे में गवर्निंग बोर्ड की तश्कील, पीसीबी इलेक्शन, PSL 9 और फाइनेंशियल मामलात पर बहस शामिल थी। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक और मैच हारे तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 कल डोनेटन में खेला जाएगा। मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान। अब्बास आफरीदी इंजर्ड, उसामा मीर और आमिर जमाल ड्रॉप, मोहम्मद नवाज, जबान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी। कीवीज को 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। जिंदगी सबकी बराबर, आजादी सबका हक। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों की हिमायत में डट गए। आईसीसी की जानिब से रोके जाने के बाद गजा के लिए आवाज उठाने का नया अंदाज अपना लिया। अपने पैगाम में लिख के जूतों वाली शर्ट्स मुतारिफ करा दी। आमदनी गजा में इसराइली जारियत से मुतासरा बच्चों की बहाली के लिए यूनिसेफ को अतिया की जाएगी। ख्वाजा ने अवाम से शर्ट्स खरीदने की अपील कर दी। और हैदराबाद की मशहूर चूड़ियां नायाब होने लगी। महंगी बिजली और गैस की वजह से कारखाने बंद होने लगे। चूड़ी साजी की सनत जवाल का शिकार। कारखाना मालिकान का कहना है चूड़ी साजी सकाफती विरसा करार दी जाए। बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ देकर सनत बचाई जाए।